Hello students, welcome back to all of you. As you know, we have started the chapter Resources and Development, and today we will discuss about the land resource. In this chapter, in first two videos, I told you about the resource and their conservation. But today we will discuss about a particular land resource. Today everything that we have, that is just because of this land resource. Land resource is very important in human life, and it is not only supporting human beings, it also supports vegetation and wildlife, and even it provides us transportation and even settlements and land for industrialization or industries. So land resource is very important and very precious. So today we will discuss about the land resource in India, particularly in India. So at present time, the total geographical land we know that is 3.28 million square kilometer. 3.28 million square kilometer is total geographical area of India. And now out of this total 100% geographical area, this time we have mainly three broad category of physical features. Which three broad categories? You have already discussed all these physical features in your previous class, in 9th class geography. This time we have plains, and plains are covering nearly 43% of total geographical land or area of India. The second is mountains, and mountains are covering 30% of area, and nearly plateaus are covering nearly 27% of land area, 27% land area. So all these physical features, they have their significant important role. Plains, we know they are very important for agricultural and industrial activities. They provide us suitable land that is important for agriculture or industrial setup. Second, mountains. We know the mountains are the storehouse of water. They provide water to the perennial rivers, and they are the very best locations that promote tourism. And even some kind of special minerals they also found in mountain regions, and they also support the mountain vegetation and wildlife. Then the plateau is also having its own significance. The plateau region of India, it also provide us different kind of minerals, as well as it is also provide us the land for the forests. So we know the human economic development that is totally depend on the different kind of minerals and resources. So dear student, the land resource, it also has its own significance. So today one more thing we will discuss, that is about the land use pattern. We know the maximum 95% of requirements regarding food, clothing, settlements, they are fulfilled by the land resource. But how we use this land resource? So let's see. The land used for different purpose, that is known as land use pattern. The land used for different purposes is called the land use pattern. So let's see
for which purpose we use the land? First of all, the natural thing that is called the forest cover. That is a natural phenomena. We know this time the agricultural land that we are using, earlier it was the forest area. So the forests, they are developed by the nature. So the land under the forests, that is we can say the forest land use pattern. The second thing, the second use of land not available for cultivation, means the land that is not suitable for agricultural activities, यानी वो जगह, वो भूमि जो खेती के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है. कौन कौन सी ज़मीन हो सकती है वो? वी कैटेगराइज दिस लाइक barren land and wasteland. Barren land means बंजर भूमि and wasteland means the land that is unsuitable for agricultural activities, जिसको हम कह देते हैं कि not level land, जो समतल भूमि नहीं है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे ऊपर उठी हुई है, टीले हैं, that is called the wasteland. Another land that is not used for agricultural activities, that is land under non-agricultural activities. What are these kind of activities? कौन कौन सी activities हैं? Like you can say buildings, human settlements, you can say the buildings, industries, roads, so etc. These are the man-made features that we develop over the agricultural land. Okay, the next another category of land use, that is other uncultivated land, excluding fallow land. fallow land means जिसको खाली छोड़ा जाता है. The fallow land is the next category, but first see this other uncultivated land, वो ज़मीन जिसके ऊपर हम खेती नहीं करते हैं, इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं. लेट्स सी द परमानेंट pastures. Permanent pastures means the land that is used for the grazing activities, पशुओं को चराने के लिए जो घास के मैदान है. हम देखते हैं कि जो गांव हैं उनमें कुछ पंचायती ज़मीन होती है. आज के टाइम पे एट प्रेजेंट टाइम इन हरियाणा एंड पंजाब स्टेट्स that pasture lands, they are converted into the agricultural land, but in some backward regions still where the herding or the animal rearing is still practiced, so some common land is used for the used as pasture lands. And grazing land. Next category in this, that is land under miscellaneous tree crops. Miscellaneous tree crops, groves, means the land where we found different variety of trees, जहाँ पर मिले जुले घास, झाड़ियाँ या फिर जो पेड़ हैं वो उगाए जाते हैं टू फुलफिल सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स. जैसे
घर में जलाने के लिए एज अ फ्यूल वी रिक्वायर्ड द वुड, या फिर जो हमारे हाउस या फिर दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए हम स्पेशल कुछ ऐसे मिक्स वेराइटीज़ के जो ट्रीज़ उगाते हैं, लगाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें आते हैं। बिकॉज द लैंड अंडर दीज मिसलेनियस ट्रीज दैट इज़ आल्सो नॉट वी आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट इज कल्चरेबल wasteland. Cultivable wasteland means the land uncultivated for more than 5 agricultural years. Now this word agricultural year, 5 year तो हमें समझ में आता है, but what is this 5 agricultural years? We know in chapter agriculture I told you the Indian farmers use or follow the 3 different agricultural pattern in India: Rabi, Kharif and Zaid. After the harvesting of Rabi crops, means mainly the Rabi crop is wheat, जब गेहूँ कटता है in North India mainly, तब किसान क्या करते हैं, those who are not willing to do the agricultural activities, so they give their land on lease. वो आगे किराए पे, रेंट पे, लीज पे आगे किसी दूसरे किसानों को ज़मीन दे देते हैं, and they give this agriculture land for next 1 year. मीन्स जब आगे दोबारा रबी की फसल कटेगी तब वो आगे किसी और नए किसान को किराए पे ज़मीन देगा या फिर खुद उस पर एग्रीकल्चर करेगा। ठीक है, तो रबी की हार्वेस्टिंग से जो एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है वो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग जो रबी की होती है, गेहूं की होती है, उस तक हम उसको एक एग्रीकल्चरल ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप सम फार्मर्स प्रोड्यूस खारिफ क्रॉप, देन नेक्स्ट ज़ैद क्रॉप, देन नेक्स्ट खारिफ एंड देन लास्ट रबी। और रबी की हार्वेस्टिंग के बाद फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट अनदर कैटेगरी ऑफ द लैंड यूज, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मीन्स इसको हम हिंदी में परती भूमि बोल देते हैं। परती मीन्स जो ज़मीन खाली छोड़ी गई है। अब कोई ज़मीन खाली छोड़ी जाती है वो 2 तरह से है, दैट इज़ आल्सो डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, विच टू ए करंट फैलो, यानी कि जिसको अभी अभी खाली छोड़ा गया है, मीन्स अनकल्टिवेटेड लेस देन 1 ईयर, जिसको लगभग 1 साल या 1 साल से कम हुआ है, ऐसी ज़मीन जिसको अभी अभी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, खाली छोड़ा गया है। अब रीजंस क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मेन रीजंस? इन हिल एरियाज़ वी नो द लैंडस्लाइड्स, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है और उस एरिया में बहुत बड़े लेवल पे अगर फ्लड आ जाता है तो जो मड आता है या फिर जो दैट मेक्स अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एंड इवन जो लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डैमेज होता है। और इवन सम ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कोई बहुत बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जब उसको डंप किया जाता है किसी बहुत बड़े रीजन में, दैट मेक्स द लैंड बैरन। और इसके अलावा जब नेचुरल कोई फिनोमिना होता है जैसे अर्थक्वेक आता है, सो समटाइम्स इट डैमेज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल और इट इवन द सरफेस ऑफ द सॉइल इट डैमेज। तो जो इक्वल लैंड है उसको अनइवन कर देता है। ठीक, नेक्स्ट द फैलो लैंड्स, और ये वो ज़मीनें भी होती हैं जहाँ पर वेयर वी फाउंड द लो फर्टिलिटी सॉइल्स,
जहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी है बहुत कम होती है, मीन्स थ्रू आउट द ईयर वी कांट यूज़ द पर्टिकुलर सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। जैसे सैंडी सॉइल्स हैं, सैंडी सॉइल्स में फर्टिलिटी बहुत कम होती है, तो ऐसी ज़मीनों में हम क्या करते हैं कि 1 साल में या 2 साल में या फिर लगभग 3 या 4 साल तक, अगेन व्हेन द सॉइल रिकवर्स इट्स फर्टिलिटी देन वी यूज़ इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तो ऐसी ज़मीन जिसको 1 साल से भी कम या 1 साल हुआ है खाली छोड़े हुए, वो फैलो लैंड। एंड सेकेंड इज अनदर अदर देन करंट फैलो। मीन्स इसको कितना टाइम हुआ है, मीन्स 1 to 5 ईयर्स, जो पिछले 1 से 5 सालों में खाली छोड़ी गई है, दैट इज नॉन एज द अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो मीन्स जिसको 1 साल हुआ है लगभग खाली छोड़े हुए विदाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड अदर देन करंट फैलो दैट इज नियरली 1 to 5 ईयर्स। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द लैंड यूज that is the net sown area. Net sown area means वो लैंड जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। नाउ वन अनदर important term is also given here. One another term is used that is called the gross cropped area. अब ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया प्लस नेट सोन एरिया में तो वो ज़मीन है जिसको हम रेगुलरली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, बट व्हेन वी ऐड दीज काइंड ऑफ सॉइल्स, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एंड फैलो लैंड्स, मीन्स जहाँ पे परमानेंट पास्चर्स हैं, इफ वी विल यूज़ दिस लैंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ट्रीज़ को कट करके हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और इवन द कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स जो हमारे पास अनकल्टिवेटेड हैं, फैलो लैंड्स हैं, व्हेन वी यूज़ दीज लैंड्स, चाहे हमारे पास फैलो लैंड है जो 4 साल में एक बार भी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है, इवन if we include these both two category in this net sown area, means net sown area जिसको हम रेगुलर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इवन वो ज़मीन जो खाली छोड़ी गई थी एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट सडनली वी यूज़ देम फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो उसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोई गई जो हमारी भूमि है, ज़मीन है, वो बढ़ जाती है। सो नेट सोन एरिया एंड इवन प्लस लैंड मोर देन once या once in an agricultural year, मीन्स वो ज़मीन जिसके ऊपर अभी हम खेती रेगुलर कर रहे हैं, और वो ज़मीन जिसको हमने लगभग साल में चाहे एक बार ही क्यों ना एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है, तो जब हम इस तरह से इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट मेक्स द टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दोबारा से बता देता हूँ, लैंड अंडर फॉरेस्ट्स, लैंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ड्यू टू द बैरन लैंड और द वेस्ट लैंड, और या फिर उसके ऊपर हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज़ ये एस्टेब्लिश कर लिए हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हमारे पास जो हैं परमानेंट पास्चर्स हैं, मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स हैं, या फिर वेस्ट लैंड है जिसको लगभग 5 एग्रीकल्चरल ईयर से खाली छोड़ा गया है। उसके बाद फैलो लैंड है जिसको करंट में अभी हमने खाली छोड़ा है या फिर 1 से 5 साल के बीच में खाली छोड़ा है। और नेक्स्ट इज़ नेट सोन एरिया। जब इस नेट सोन एरिया में हम इनमें से किसी भी मीन्स कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 अगर हम बाय चांस इन दोनों में से किसी एक को भी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारा एरिया किस में ऐड हो जाएगा, नेट सोन एरिया के साथ। और नेट सोन एरिया के साथ वो ऐड होकर के क्या बन जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। द नेक्स्ट, द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया।
अब इंडिया में जो हम लैंड है उसको कैसे यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेज, हाउ वी यूज़ द लैंड रिसोर्स इन आवर कंट्री फॉर डिफरेंट पर्पजेज. सो लेट्स सी दिस. We know the total geographical area of India, that is 3.28 million square kilometer. हमारा ये टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. That is you have already studied in your 9th class the total geographical area of India. But इस टोटल geographical area का मतलब है कि हमारे एरिया के अंडर इंडियन बाउंड्रीज, इंडियन बॉर्डर हमारे पास इतना एरिया है. बट दिस इज नॉट ट्रू. एज यू नो वी हैव कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड वी हैव कन्फ्लिक्ट विद चाइना, एंड रिसेंटली देर इज अनदर कन्फ्लिक्ट वी आर फेसिंग विद नेपाल. तो हमारा जो बॉर्डर एरियाज है स्टिल वी हैव कन्फ्लिक्ट विद आवर नेबरिंग कंट्रीज. सो ड्यू टू दैट सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट असम, क्योंकि असम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सेंटर में लाई करता है. उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इवन सिक्किम, those are the border states. And even Jammu and Kashmir, we know there are two parts, that POK, that is under the Pakistan, and COK, China occupied Kashmir. तो ये जो regions हैं still we don't have the data of these areas. So we have only the data of total 93% of geographical area of India. बाकी का जो है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जो स्टेट बाउंड्रीज हैं, दो स्टेट्स के बीच में भी हम देखते हैं जहाँ पे झगड़ा है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं. इवन इन झारखंड स्टेट, छत्तीसगढ़, जो अबूझमाड़, द फॉरेस्ट एरिया ऑफ अबूझमाड़, वी नो दैट इज़ द नक्सलाइड एरिया, स्टिल इज़ नॉट सर्वेड. आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं 1947 टू टिल टुडे, दैट इज़ नॉट इवन सर्वेड. आज तक भी उन इलाकों का सर्वे नहीं हुआ है. दैट्स वाई वी डोंट हैव द data of such kind of areas. But as we know the total area that we have, जितना भी हमारे पास है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं. We know we use the land for agricultural purposes, industries, habitation, transportation, or even the grazing animals, so many different purposes. So the land use pattern provides even the land use pattern in India that also differ from one state to another. Let's take example in Haryana and Punjab. In Haryana and Punjab, or we can say in western UP, in parts of western UP, western Uttar Pradesh, so the land is nearly 80%, the 80% of total land of these two mainly states is used for agricultural purposes. Haryana and Punjab, what is the main economic activity? That is the agriculture. That's why the 80%, more than 80% land is under the farming. And another side are northeastern states. Let's take an example of Arunachal Pradesh or the Sikkim. Only Arunachal Pradesh, nearly 10% land is under agriculture, because we know the land is not suitable for the agricultural activities due to the slopey areas or the hilly areas. So even one more thing that is given in the book, that is every country is required nearly 33% under the forest cover. And in India, that is also taken this idea under the policy of National Forest Policy. National Forest
पॉलिसी क्या कहती है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दैट वाज फ्रेम्ड इन 1952 means according to this policy the land area, nearly 33% of land area of India, it should be under the forest cover. In 1960 or 61 there are two pie diagrams given in your textbook, so you can compare these two pie diagrams and then you can understand how the land use pattern is changing in India. So earlier in 1960 and 61 the forest area in India, it was nearly 18.11%, 18.11%, and in 2008 and 9 now the forest area increased. As we know, the population of India is increasing and we need the more land under agricultural activities, but even we can see in 2008 and 9 the forest area is increasing. तो क्या हमने एग्रीकल्चरल लैंड को कम कर दिया? हमने फिर एग्रीकल्चरल लैंड को फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया? यस, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड को भी किया, लेकिन जो हमारे पास बैरन लैंड्स थी या फिर जो हमारे पास कुछ डिफॉरेस्टेड एरियाज थे, ड्यू टू द गवर्नमेंट policies and due to some social agencies help, we convert that land into the forest area. So now here in 2008 and 9 the land reached up to 22.78%, and now recently in 2019 that is 24.39%. As we know, now the maximum countries in the world, they are working over to maintain the ecological balance. So that's why we need to remain our area, to cover our area as we can do more and more under the forests. So but in some books, if you will search on the Google in 2019, in somewhere it is given only the 21%. But now you can see, you can write down or note this data. Now in 2019 the forest cover area in India is 24.39. So still we are lacking behind to reach this target. कितना एरिया होना चाहिए था हमारा फॉरेस्ट कवर में? 33%, but still we have only 24.39. तो अभी भी नियरली हमारे पास 8 to 9% जो एरिया है उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है. सो और इवन वी नो वी यूज़ द लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर सो मेनी टाइम्स, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. As we know, the population is increasing, so the size of village and even the size of cities, they are still increasing, and even we know we are making more and more transportation means the land is also going under the transportation, under railway lines or the roads, or even this time even we are increasing industries to make economic development. That's why the land is also going under these kind of human activities or human habitation. Next, as we know, the land is very important resource in human life, but to fulfill our requirements we are continuously and in a indiscriminate way we are using this land resource, and due to this injudicious way we are using the land resource, it is degrading our land. Degradation and conservation. First of all, degradation. Degrade होना. Degrade means the level of the soil when decreases. Level means the fertility of soil when decreases. That is called the degradation of land. क्योंकि लैंड जो है मेनली हम इसको जो यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस.
So what are the main causes behind this degradation of land? So at present in India we have nearly 130 million hectares degraded land. अब इस 130 मिलियन हेक्टेयर्स में से इसका जो 28% है, द 28% ऑफ दिस टोटल डिग्रेडेड लैंड दैट इज डिग्रेडेड ड्यू टू द फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड, यानी कि जो फॉरेस्ट थे हमने उनको डिस्ट्रॉय किया, डिफॉरेस्ट किया उस एरिया को. 56% ऑफ दिस degraded land that is due to the water eroded, due to the water erosion. वाटर इरोडेड लैंड है हमारे पास 56%. और इसके अलावा जो हमारे पास रेस्ट है, रेस्ट ऑफ डिग्रेडेड लैंड इज ड्यू टू alkalinity and salinity into the soil. ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है यहाँ पे. वी नो द pH वैल्यू. अगर pH वैल्यू 7 है दैट इज़ ओके. अगर वो उससे नीचे हो जाती है द लैंड इज़ द सॉइल बिकम्स एसिडिक, और अगर वो उससे ऊपर हो जाती है तो भी जो लैंड है वो that is not taken as suitable for agricultural purposes. ओके, सो जो pH वैल्यू है दैट रिमेन्स. और ये जो alkalinity and salinity है ये किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू द ओवर इरीगेशन. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स इन हरियाणा एंड पंजाब. हरियाणा एंड पंजाब स्टेट्स जो लैंड डिग्रेड अब हो रही है, द लैंड इज बिकमिंग डिग्रेडेड ड्यू टू द ओवर इरीगेशन. Because due to the over irrigation it make the water logging. वाटर लॉगिंग मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं सड़कों के किनारे पे या कहीं इंडस्ट्रीज़ के बाहर जहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है. द सॉइल डज नॉट हैव पावर टू सक द वाटर, यानी कि पानी ये जो हमारे पास एक सरफेस है इसके ऊपर जब पानी खड़ा रहता है तो यहाँ पे एक जो नीचे की कुछ लेयर्स हैं इसमें मिनरल्स या साल्ट इस तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं. दे वर्क एज ए लैमिनेशन एंड दे नेवर लेट द वाटर गो इनसाइड. पानी को नीचे ज़मीन में नहीं जाने देते और उस ज़मीन पे वहाँ पे वो पानी हमेशा ही खड़ा रहता है. दैट इज़ कॉल्ड द वाटर लॉगिंग एंड दैट इज़ ड्यू टू द ओवर इरीगेशन. और ओवर इरीगेशन से क्या होता है? द एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी इंक्रीजेज इन द सॉयल. और इसके साथ साथ वी आल्सो नो इन हरियाणा एंड पंजाब टू मेक द मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द क्रॉप्स वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स or fertilizers, chemical fertilizers, that is also making degrading the quality of the soil. They are improving the fertility of soil, but they improve only for a small period of time, not for a long period of time. So that's why they are also responsible for the degrading the soil. And in Haryana and Punjab, in Gujarat, Gujarat, Rajasthan, what are the main reasons behind the degradation of land? Overgrazing. We know some tribal peoples or even some communities are living there. The Chaudhary community in Gujarat or in the Rajasthan region border areas, or even some other different communities, those who are living there. So they are rearing the animals or the कैटल्स, शीप और जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको पाल रहे हैं. सो दैट्स वाई दे हैव अ वेरी लार्ज साइज ऑफ
ग्रेजिंग एनिमल्स, या फिर कहें कि जो फार्म साइज है, जो एनिमल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नंबरिंग में है। एंड व्हेन दे क्रॉस एनी रीजन, जब वो अपने जानवरों को लेकर के माइग्रेशन पर निकलते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ग्रास एंड वाटर, तो उस टाइम पे जहाँ जहाँ से वो पशु गुजरते हैं दे डिग्रेडेड द लैंड, क्योंकि जब वो घास को अपने जॉ से उखाड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है, एंड दैट इरोडेड बाय द फोर्स ऑफ वाटर एंड एयर। सो ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल इन गुजरात एंड राजस्थान for the land degradation, and in states like Jharkhand, Odisha और Bihar, the mining activities is responsible for the land degradation, because as we know, when we do the mining on any location or any site, it leaves the scars, means गहरे गड्ढे बन जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं उस ज़मीन पे, और जब रेनफॉल होती है तो वो जो जगह हैं वो पानी से भर जाती है, एंड दैट टाइम the land is not suitable for the agricultural activities, and we know there are so many other activities, human activities, they are also making our land degraded. So now what we have to do for the conservation? We know economic development is required of the time, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी, एंड फॉर दिस वी हैव टू यूज़ द लैंड फॉर द सेटलमेंट्स, फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इससे जो है लैंड वो डिग्रेड होगी ही। लेकिन उस लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक सम मेजरमेंट्स टू कंजर्व आर लैंड रिसोर्स। सो व्हाट वी कैन डू? सो the thing is very simple that you are already studying in your junior classes. First of all, the afforestation. हमें क्या करना पड़ेगा? We have to increase our land more and more under the forest cover. जो सबसे पहला स्टेप है to for the conservation of land or the soil, that is afforestation. मीन्स वेयर एवर इज़ अवेलेबल, जहाँ पे पॉसिबल हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए, एंड दे इवन द अफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो सुटेबल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हमारा एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशंस हैं उनको कम करने के लिए और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए भी अफॉरेस्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। और हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट of grazing, where the overgrazing is there in the regions like Gujarat and Rajasthan. So we have to go for the proper management of grazing, means पशुओं के लिए जो रीजन है उसको वन बाय वन, मतलब उसको इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि जो सॉइल है वो डिग्रेड ना हो। अनदर step that we can take, planting shelter beds. This particular step is used in the desert regions. In desert regions, to stabilize the sand dunes. Sand dunes actually होता क्या है? In 9th class you discussed कि जब हवा चलती है उसके साथ साथ जो सैंड पार्टिकल्स हैं दे आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो रेत के टीले होते हैं दे आल्सो माइग्रेट, और जब ये माइग्रेट करते हैं सो द सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंड ड्यून्स दे कवर्ड द फर्टाइल लैंड, द एग्रीकल्चर लैंड। तो क्या करते हैं? उन रेत के टीलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके आगे कुछ कंटीली झाड़ियाँ या फिर एक ट्रीज़ की बेल्ट लगा दी जाती है। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इन श्रब्स या फिर इन पेड़ों, इन झाड़ियों के साथ टकराकर वो यहीं पर ही स्टेबल
हो जाएंगे, दे विल नॉट माइग्रेट फॉरवर्ड. अनदर स्टेप दैट वी कैन अडॉप्ट, प्रॉपर discharge of industrial waste. जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, ठीक, तो उसको चाहे वो केमिकल है, बायोलॉजिकल कुछ भी है, किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो हमें उसको प्रॉपर मैनेज करके ही उसको आगे डंप करना चाहिए, उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, चाहे वो पोल्यूटेड वाटर है या फिर कुछ हार्ड मटेरियल है. और इवन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारे मैक्सिमम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो हमें लोकेट करने चाहिए, बिकॉज जैसे हम एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, व्हेन दे गो इनसाइड द सॉइल विद वाटर, दे मेक्स द डिग्रेड आर लैंड रिसोर्स. तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का भी, जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको भी कम से कम यूज़ करना चाहिए. So these are the some measures or the steps that through that we can conserve our land resource. So I think this is enough for today's lecture. So in next lecture we will discuss about the soil as a resource and the different type of soils that found in India. If you feel any problem regarding this topic, so you can leave your message in WhatsApp group, or even you can ask through the online classes. So till then, goodbye.